Good evening, students. Today we will learn the mirror and spherical mirror part. This is the last part of this chapter light. So, as I have taught you earlier about this plane mirror, I have taught you about the plane mirror that you usually see in your basins or the face mirror. Okay, those are the plane mirror. They don't have any curve in them. वो ऐसे थोड़ा टेढ़ा नहीं होता, ठीक है, वो पूरा सीधा होता है, प्लेन. But we will today learn about the spherical mirrors, then we will learn about the lens, then we will learn about how dispersion of light occurs. Dispersion, you know, white light is not consisting of only the white color. As you are seeing a light which is white in color, but it is not actually white in color, but it is made up of different color that I'll teach you how the different colors come and why it is happening. So first we'll start with the mirror and the spherical mirrors. All the mirrors are not straight like the plane mirrors, as some of the mirrors are curved. Okay, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी मिरर ऐसा होता है जो प्लेन मिरर नहीं होता, उसको हम लोग स्पेरिकल मिरर बोलते हैं. Is a common example of spherical mirror that there is a common example of curved mirror, that is spherical mirror. Okay, not all mirrors are plane, some are curved, and the common example that we use in day to day life are the spherical mirror. Spherical mirror आप ऐसे सोच लीजिए, ठीक है, एक बॉल है, बॉल को आप साइड से थोड़ा सा काट दिए, ठीक है, पूरा साइड से, मतलब एक बॉल को आप 30-40% जैसे काट दिए, एक 30% पार्ट होगा, एक 40%. जो 30% पार्ट होगा उसी उसी की तरह एक यदि हम मिरर बनाए उसी शेप का, उसको हम लोग कर्व्ड मिरर बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा सोचिए तो आपको पता चल जाएगा कर्व्ड मिरर कैसा शेप का होता है. ठीक है, mirror those reflecting surface is part of the hollow sphere of a glass is known as spherical mirror. आपको यदि कोई पूछे what is spherical mirror, you will answer that spherical mirror are those mirror that have a reflecting surface which is a part of a spherical which is a part of a hollow sphere of glass is known as a spherical mirror. So as I have said earlier, if you cut a ball, any type of ball, into two pieces, that one piece will have a 30% and another piece will have another 70%, then the 30% piece, if that ball is made up of glass, okay, glass, and the 30% piece when you take it out and use it as another glass, that will be a spherical mirror. There is an activity in your book which will give you a better understanding how the spherical mirror is made. So please take attention to those activities so that you can understand this topic easily. Okay. See, images formed by spherical mirror. Spherical mirror दो टाइप का होता है actually, the convex mirror and the concave mirror. So both this mirror act differently according to different place of the object. As I told you in a plane mirror में आप जितना आप कोई भी चीज आप एक मिरर के सामने रख दो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो उसका इमेज, जो उसको मिरर के अंदर जो फॉर्म होता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं. So similarly, the object you place in front of a curved mirror will have different characteristics not similar to the plane mirror. प्लेन मिरर में क्या था, जितना आप ऑब्जेक्ट से दूर, मतलब मिरर से दूर खड़े होंगे आपका इमेज उतना ही दूर खड़ा होगा, जितना पास आएंगे इमेज उतना पास आएगा, जितना दूर जाएंगे इमेज उतना दूर जाएगा. आप जितना बड़े होंगे, मतलब आपका हाइट 6 फुट है तो आपका इमेज का हाइट भी 6 फुट होगा. ठीक है, लेकिन स्पेरिकल मिरर में ये जब चीजें एक्चुअली होती नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है. बाकी मैं आपको पहले ही बता दूं, ये चैप्टर मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा, मतलब ये जो पार्ट है ब्रीफली, बिकॉज यू नो ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, मतलब आपको एक टाइम में पूरा समझ नहीं आएगा. आफ्टर रीडिंग लाइक 8th 9th 10th 11th 12th आपको पूरा समझ में आएगा धीरे धीरे. ठीक है, तो आपको अभी अपने स्टैंडर्ड तक सिर्फ इसका मतलब डेफिनेशन याद रखना है,
कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है याद रखना है, ठीक है। कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है, कौन सा कहाँ यूज होता है, बस इतना ही याद रखना है। क्योंकि जब आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको ये धीरे धीरे ठीक से समझ आने लगेगा। यदि मैं आपको अभी बता दूं तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये पार्ट बहुत ब्रीफली आपको समझना है। सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, जो आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा इसको समझने में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा और समझ भी नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि उसके लिए आपको वो जो बेस होता है, बेस के ऊपर जो काम करना है वो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे आप 8th में थोड़ा और समझेंगे, 9th में थोड़ा और समझेंगे, 10th में और समझेंगे, 11th 12th में और समझेंगे। तो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे आप सीखेंगे ये चैप्टर एक बार में समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपके जो स्टैंडर्ड तक आपको सिर्फ याद रखना है डेफिनेशन, और कौन सा टाइप का इमेज कहाँ फॉर्म होता है, और ये मिरर या लेंस कहाँ यूज होता है, ठीक है। बस इतना इतना आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ इस पर स्ट्रेस नहीं देंगे, ठीक है। Image formed by spherical mirror. It is a fact that the spherical mirror forms an image of the object placed in front of them. So these images are formed when the light ray comes from the object, falls on the mirror and gets reflected and converge or diverge. We can use a spoon in order to understand the image formation by a spherical mirror. यदि आप पूरा एक नया स्पून लेंगे, पूरा नया चकचकाता स्पून, तो देखेंगे जो अंदर तरफ होता है, जो स्पून्स का अंदर तरफ, वो एक टाइप का कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। जो बाहर तरफ होता है वो भी चकचक हो रहा है, उसमें आप यदि अपना मुंह देखेंगे वो उल्टा दिखता है, लेकिन आप अंदर तरफ देखेंगे आपका मुंह सीधा दिखता है। बिकॉज ऑफ द कर्वेचर, जो वो टेढ़ा होके है स्पून, जो स्पून का ऐसे जो ये है, उसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो सीधा और टेढ़ा, सीधा जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जो उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट कर्वेचर ओनली। एंड स्फेरिकल मिरर में और कुछ नहीं है, बस यही कर्वेचर को लेके सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे क्या क्या हो रहा है। The inside surface of the hollow sphere of a glass is bent in or concave, but the outside surface is bulging out or convex. जो आउटसाइड सरफेस होता है उसको हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं। जो स्पून हो गया ऐसे, तो इसका आउटसाइड सरफेस जो होता है वो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स। जो इनसाइड सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव। ओके, कन्वेक्स एंड कनकेव, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, दोस आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। वो बोल चुका हूँ, कन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। हम लोग जानेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर। जो भी पहले बोल रहा हूँ मैं कि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ याद मतलब समझने का है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, सिर्फ डेफिनेशन याद रखेंगे और इमेज क्या फॉर्म हो रहा है याद रखेंगे, और कहाँ यूज हो रहा है उतना याद रखेंगे, ठीक है। ज्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं देंगे। कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। सी, कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब मैं बता चुका हूं पहले भी, यदि आपका लाइट आ रहा है और एक जगह मिल रहा है, ठीक है, यहां से लाइट आया, यहां से लाइट आया, और यहां एक जगह मिल रहा है, यहां से ऐसे मिल गया, तो मिलने पर उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। तो ये मिरर उसमें हेल्प करता है, ठीक है। द मिरर दोज हु रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कनकेव and polished surface is convex is called as concave mirror. See, the outside surface, the concave surface is mirror and the convex surface is the reflecting surface, ठीक है। The concave mirror reflects the parallel rays of light in such a way that after reflection the ray converges or meet at a point called the focus in front of the mirror. So as I have told you, if someone asks what is concave mirror, you will answer that a mirror that when parallel ray of light hits a mirror and the ray of light after reflection is important, okay, आपको after reflection बोलना ही पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। After reflection they converge to a point that is known as focus, is called as concave mirror,
ओके, एज यू कैन सी पैरेलल रे 1, पैरेलल रे 2, बहुत सारा रे आ रहा है, लेकिन समझने के लिए हम लोग सिर्फ दो रे यूज करेंगे, ठीक है। एक रे यहाँ से, एक रे यहाँ से है, देखो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके ये एक चीज होता है फोकस, फोकस अब बाद में जानेंगे क्या होता है क्या नहीं, मैं अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर का सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखना है, यूज और कौन सा इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में दो टाइप का इमेज फॉर्म होता है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, लाइक सन को यदि हम कनकेव मिरर में देखें तो वो एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम लोग कनकेव मिरर में देखने पर एक टाइप का इमेज फॉर्म होता है, लेकिन आप अपना हाथ कनकेव मिरर के सामने ऐसे रख देंगे तो वो एक नियर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। Depending upon the distance from the mirror, there are two objects, that is near and distance object. When there is a distance object from the concave mirror, it is forming a real, inverted and a diminished, okay, smaller. Diminished का मतलब होता है smaller than the actual size. सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन उसका इमेज जब हम लोग फॉर्म करते हैं, उसका इमेज फॉर्म होने पर वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, माइक्रो सेंटीमीटर्स में आता है इमेज उसका, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। सी अर्थ और सन का एग्जांपल हो गया, लेकिन आप सोचो कि मैं 200 मीटर दूर एक फ्लैग खड़ा किया, फ्लैग एक पोल के ऊपर, आपको बोला एक कनकेव मिरर पर उसका इमेज देखो, तो आपको वो फ्लैग पोल सीधा नहीं दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। मतलब फ्लैग नीचे होगा, पोल ऊपर होगा, ऐसा होता है, ठीक है। आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप जो चाहें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह में, ठीक है। When the object is closer to the concave mirror, it is virtual, erect, larger than the object. Virtual होता है, virtual image में बता चुका हूँ पहले, virtual images are the image that can't be formed on a screen. स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो उसे रियल बोलेंगे, जो नहीं फॉर्म हो उसे वर्चुअल बोलेंगे, ठीक है। ये रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज का पूरा मतलब बेस डिफरेंस है, उसके बाद आप जो भी बोलो, लेकिन बेस डिफरेंस यही होता है कि स्क्रीन में फॉर्म हो नहीं फॉर्म हो, बेस डिफरेंस इतना होता है, ठीक है ना। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबगढ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आगे भी काम आएगा और ये डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। To see the larger images of teeth of a patient, concave mirror are used by the dentist. In torches, the headlight of the vehicle and searchlight to get a strong straight beam of light, etc. Concave mirrors are used by reflectors. Used as reflectors, you see it is used by the dentist, it is used as a reflector to see a large image of the face. Then the concave mirror are used as saving mirror, okay. See, your face is very big, but आपका क्या होता है, जब आप प्रॉपर सेविंग मिरर यूज करेंगे तो आपको थोड़ा वो कर्व मिलेगा, कर्व मिलने पर क्या होता है, आपका फेस बड़ा होता है, लेकिन आप एक छोटा मिरर में भी अपना फेस पूरा देख सकते हैं। किस लिए देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो उसको छोटा कर देता है, आपका फेस का जो इमेज उसको छोटा करके आपको पूरा दिखाता है, तो इसलिए वो सेविंग मिरर में यूज होता है, रिफ्लेक्टर में यूज होता है और डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। दिस आर द इंपॉर्टेंट यूजेस, सो यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट, ओके। Concave mirror, the mirror whose reflecting surface is bulging or the convex, polished surface is concave, it's called the convex mirror. After the reflection from the convex mirror, the parallel ray of light are spreading out. When the parallel ray of light spread out, we can say that the ray of light are diverging. You see, the main thing you have to remember about convex mirror or the diverging mirror is that when parallel ray of light hits the convex mirror, okay, it diverges. See, the ray is coming here, it is coming this side. When this ray is coming, it is coming this side. When this ray is coming, it is coming this side. When this ray is coming, it is coming this side. So you can see
there are 4 rays, it is diverging. Okay, it's diverging into different directions. But in case of concave mirror, it was converging, एक जगह पर ऐसे मिल रहा था, ठीक है, उसको converging बोलते हैं. तो मेन डिफरेंस क्या होगा कन्वेक्स और कनकेव में? कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है. यही मेन डिफरेंस और डेफिनेशन भी है, ठीक है. इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, whatever be the distance of the object from a convex mirror, the image formed by the convex mirror is always virtual, erected, smaller than the object. ओके, जो भी हो, दूर पे हो, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट हो, सारे टाइप्स के डिस्टेंस पर एक ही तरह का इमेज फॉर्म होता है. कनकेव मिरर में अलग अलग था, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग था, नियर ऑब्जेक्ट के लिए अलग था. कनकेव मिरर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, कनकेव मिरर के लिए